Hallelujah. 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 تیرا شکر، تیرا شکر۔ خدا سے برکت لینے کے لیے ایک سنجیدہ روح اور خالی برتن کی ضرورت ہے۔ رندری بلارا کا سودر سودر بلارا کا سودر بلارا کا یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ ہم آج جو میسج ہے اس کو عنوان دیں گے داد کا منتظر۔ داد کا منتظر۔ لفظ داد کا مطلب ہے تعریف، ستائش، شکر گزاری، یہ ہے مطلب داد کا۔ کیا مطلب ہے؟ تعریف، ستائش، شکر گزاری وغیرہ وغیرہ، یہ ہے داد۔ ہم نے پڑھا ہے اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی۔ وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ فریاد سنی۔ ہمارے خدا کا دل کس چیز کا منتظر ہے؟ وہ کس چیز کے لیے ہماری زندگیوں میں ویٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے ہمارا خدا تعریف کا منتظر ہے، وہ داد کا منتظر ہے، لیکن سن کس چیز کو رہا ہے؟ رونا سن رہا ہے اور کھنچتانی دیکھ رہا ہے، فریاد سن رہا ہے، آنسو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا خدا منتظر کس چیز کا ہے؟ داد۔ اگر آپ اس کو پہلی آیت سے پڑھیں، میں اس کا انکشاف چاہتا ہوں بہتر طور پر آپ کے اوپر کروں ان آیتوں کا۔ پہلی آیت سے پڑھیے گا ذرا مریم اونچی آواز میں۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب الفوج کا پاکستان قوم بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے پاکستان کے لیے خدا کہہ رہا ہے گیت گاؤں گا۔ جی، میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا۔ اس کا محبوب یہاں پر مسیح یسوع کی بابت بات کی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب کا جو پاکستان ہے وہ ایک خوشنما پہاڑ کے اوپر ہے۔ جی، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے ہیلو بیٹا، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، آنا جانا بالکل بند کر دو۔ مجھے یہاں میرے سوا کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے، مہربانی کرو۔ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ ڈسٹرب کر کے رکھ دو گے مجھے بھی۔ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ اس نے میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا۔ پاکستان جو پہاڑ کے اوپر تھا، بائبل فرماتی ہے وہ پاکستان قوم بنی اسرائیل ہے، اور کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اسے کھودا۔ جی، اور اس سے پتھر نکال پھینکے۔ اس کے اندر جو پتھر تھے، جو اس زرخیزی کو، جو اس خوشنمائی کو روک رہے تھے، کلام فرماتا ہے اس نے ان پتھروں کو اس پاکستان میں سے کھود کر نکال کر جی، اور اچھی سے اچھی تاکہ اس میں بائبل فرماتی ہے پھر خدا نے کیا کیا، ادھر اچھی سے اچھی تاکیں لگا دی، اور اس میں برج بنایا، اس میں برج بنایا۔ اور ایک کولہو بھی اس میں تراشا، دیکھیں کیا بات ہے خدا کی۔ ادھر کیا کیا؟ برج بنایا،
कोलू तराशा कोलू किसके लिए? कोलू क्या है? तेल निकाला वहां पर रूल कुछ रखा, वहां पर क्या रखा? किधर? बनी इसराइल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पहले क्या निकाल कर फेंके? पत्थर फेंके। फिर पत्थरों के निकालने के बाद वहां पर उसने ताके लगा दी। ताके लगाने के बाद बुर्ज बनाया। बुर्ज बनाने के बाद वहां पर कोलू रखा। तेल, रूह कुद्स, खुदा की हुजूरी, मददगार, रहनुमाई देने वाला, आगे आगे चलने वाला, लाइट देने वाला, मुआवनत करने वाला, तसल्ली देने वाला, तशफी देने वाला, सहारा देने वाला वहां पर रखा कोलू। ये काम है जो खुदा ने किया। जी आगे आगे बढ़िए। और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। अब वेट किया, सारा कुछ पत्थर निकाल दिए, गलत जड़ी बूटियों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब खुदा क्या कर रहा है? इंतजार किया, इंतजार कर रहा है वहां पर क्या लगे? अच्छे अंगूर लगे। अच्छे अंगूर लगे। अब सुनिएगा, यहां पर एक मैं छोटा सा बागीचा बनाता हूं। बनाने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, क्या तवक्को करूंगा? अच्छा फल लगे। अमरूद लगाया, वहां पर क्या होने चाहिए? अमरूद, अच्छे अमरूद। जी आगे। लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। हैरत की बात, अच्छी ताके लेकिन अंगूर जंगली अंगूर। पुरानी फितरत नजर आ रही है। जंगली अंगूर। हाँ, क्या नजर आ रहा है? जंगली अंगूर। जंगल का कानून, जंगली सोच, जंगली अंगूर। होना क्या चाहिए था वहां? अच्छे अंगूर होने चाहिए थे, अच्छे एप्पल होने चाहिए थे, वहां पर अच्छे ग्रेप्स होने चाहिए थे। लेकिन क्या है? वहां पर जंगली अंगूर। जी आगे। अब यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। बाइबल फरमाती है, यहूदा के लोगों, इसराइल के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान के दरमियान तुम क्या करो? ये है, तुम क्या करो? अब देखें, मैं या कोई बंदा बाग लगाता है, अगर उसकी तवक्को के मुवाफिक फल नहीं आएगा, इतनी मुशक्कत करता है, वो क्या करेगा? वो कहेगा मेरे और मेरे पाकिस्तान के दरमियान अब तुम क्या करो? इंसाफ करो। जी, कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था। खुदा किस कदर डिस्टर्ब होकर रह गया। खुदा कह रहा मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था। जी, जो मैंने ना किया। जी, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? कह रहा सब कुछ किया गया, सब कुछ किया गया, उम्मीद की है अच्छे अंगूर लगे, फिर भी क्या निकल आए? जंगली अंगूर। जी, मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। खुदा कह रहा है हुण मैं तानू दसन लगा कि मैं इस पाकिस्तान ना करन की आला। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। और मैं ओदे चुगिर्द जड़ा अहाता लाया सी ना, ये मेरा है। खुदा कह रहा है मैं उसकी क्या करूंगा? बाढ़ गिरा दूंगा। और वो चिरागा होगा। वो चिरागा मतलब दूसरे लोग उसको क्या करेंगे? यानी खुदा उन कौमों को, उन लोगों को जो इसराइल के मुतई थे, उनको चढ़ाएगा ताकि इसराइल को खेरू खेरू जुनू के देने तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ये हुआ है, बाइबल यही बताती है, ये हुआ भी है, ऐसे बात नहीं है, हुआ है इस तरह। जी, उसका अहाता तोड़ डालूंगा। खुदा फरमाता मैं उसका अहाता, निगहदाश्त, निगहबानी, चौगिर्द घूमने वाली तलवार, जो तहफ़्फ़ुज़ की बाढ़ है, उसको तोड़ दूंगा। जी, और वो पमाल किया जाएगा। वो पेमाल किया जाएगा। और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। मैं उसको बिल्कुल वीरान कर दूंगा।
वो ना छांटा जाएगा ना नराया जाएगा। उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं ये बादलों को किस कदर हौलनाक हालत है। जब ऐसी जगह जहां से पत्थरों को निकालकर, गलत जड़ी बूटियों को निकालकर फेंका गया, अब फिर से वहां ऊंट कुटारे दिखाई दे, किस कदर डेंजरस हालत है ये। आप इसको समझ रहे हैं, ये कैसी हालत है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आप ही दसना है किवें दी हालत है। स्पिरिचुअल फहम से समझने वाली बात है ये। हालेलुया जी, आगे बढ़िए। और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाए। सूरह अल-फाज अपने ताक़त। हाँ, फिर से पढ़ें। ये हतमी आयत है, स्पेशल आयत है जिसको मैंने टीच करना है अभी। तो रबुल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है। खुदा फरमाता है सो रबुल फौज का जो पाकिस्तान है वो बनी इसराइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी। वो दाद का मुंतजिर रहा पर फरियाद सुनी। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर क्या देखी? खून रेजी देखी, खून रेजी देखी, दाद का मुंतजिर रहा। फरियाद जब उसने लगा दिया, सब कुछ कर दिया, अब दो चीजें खुदा तवक्को कर रहा था कि इस्राइल इंसाफ करे, मेरे साथ इंसाफ करे। फिर खुदा वेट कर रहा था कि वो तारीफ करे। इन दोनों चीजों का वो क्या था? मुंतजिर। अब नए अहद में खुदा के कलाम की बाबत मैं आपको टीच करना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा मसीह यीशु इस संसार में आया, वो हर एक बशर के लिए मरा। उसने पुरानी फितरत को लेकर जो पत्थरों से भरी हुई थी, जो ऊंट कटारों और सजाओं और जहालतों, कबाहतों, शामतों से भरी हुई थी, बेहूदगी, बेचारगी, लाचारगी से भरी हुई थी, उसको लेकर सलीब पर उसने कीलों के साथ अपनी जात में जड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने संसार के अंदर अपने नाम से एक कलीसिया जो उसका पाकिस्तान है, उसने उसको वहां पर रखा और वहां पर उसने कोलू रखा। उसने कहा मैं तुम्हें मददगार दूंगा, मैं तुम्हें रूहुल कुद्स दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। और उसने रूह के फल लगाए। अब वो क्या आपसे तवक्को कर रहा है? अच्छे अंगूर, अच्छे अंगूर, यानी ये जो फल है ना, मैं और आप दरख्त हैं और जो फल है वो मसीह के काम है हमारी जिंदगी। तारीफ, उसकी शुक्रगुजारी। फल जो है ना, वो क्या है जस्टिन भाई? फल दरख्त हम है और फल मसीह की खूबियां हैं। दरख्त हम है और फल मसीह की खूबियां। यानी मसीह के सारे किरदार की अक्कासी मुझे और आपको दुनिया में करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की आरज़ू है कि हम उसकी तारीफ से क्या हों, भर जाए। लेकिन खुदा क्या सुन रहा है? फरियाद सुन, फरियाद। क्या सुन रहा है? फरियाद। फरियाद। फरियादी सब कुछ कर दिया, सब कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद खुदा क्या कहेगा? मेरी क्या करो? कुछ चीज की कमी नहीं छड़ी, फिर भी तुसी की करो? फरियाद। कोई है बात ऐसी जो यीशु ने नहीं की? मैं आपको हमेशा बताता हूं, आदम को सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने कहां रखा? बदन में रखा, ताकि वो क्या करे? खुदा के साथ वक्त गुजारे, तारीफ करे, सताइश करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप से यही तवक्को कर रहा है कि आप अब उसकी क्या करें? सारा टाइम उसकी तारीफ, शुक्रगुजारी, तारीफ, शुक्रगुजारी। कोई बात है नहीं, कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा ने छुपा कर रखी है। सब कुछ मसीह यीशु में आपको मिल चुका है। अब वो चाहता है आप किससे भर जाए? शुक्रगुजारी से, तारीफ, उसके फलों से, उसके किरदार से, उसकी मोहब्बत से, उसकी तारीफ से। ये खुदा चाहता है। लेकिन की सुन रहा है? फरियाद। क्या सुन रहा है?
फरियाद कितने हैं जो फरियादी हैं? हालांकि तेरे दर ते आए हैं फरियाद करने हैं।